केमिस्ट्री की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका इन द चैनल केमिस्ट्री बाय कुणाल सर, द चैंपियंस। आई एम कुणाल sir with 7 years of teaching experience in state board, CBSE board and ISC board in the areas of state board examinations and competitive sections examinations. So friends, this is the second part of unit number 4, chemical kinetics. In first part, we already had completed up to order of reaction. From order of reaction, we'll continue with second part. And as usual, you all know that the methodology of this video is first we are focusing on the explanation of concept. Each and every concept I converted into questions. So you got the idea about the topic wise question wise answers, correct? Then question with handwritten notes, and as usual again the second part handwritten goes to the credit goes to handwriting credit goes to Midali, one of my student, है ना? And the third and the most important point, it is handwritten notes, correct? And yes, each and every question here I am giving with the mark distribution. So let's my size becomes a small and small to make you a bigger and bigger in chemistry. Right. Okay. So let's begin the show from order of reaction, and that is the first question of part 2 and the ninth question of this theory series of unit number 4, chemical kinetics. Right. So in previous session I had already told that order of reaction and molecularity, these are the two most important terms for explaining any chemical reactions. Now what is order of reaction? In this short note, first you have to write the definition of order of reaction. But before definition, देखिए दो तरीके होते हैं किसी भी डेफिनेशन को याद रखने के। या तो आप डेफिनेशन का रट्टा लगाओ, उसके बाद एग्जांपल का भी रट्टा लगाओ, या एग्जांपल माइंड में सेट कर लो, डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, माइंड अपने आप एवरी टाइम स्क्रिप्ट करेगा। मेरा सेकंड तरीका है, मुझे सेकंड क्या इजी रहता है, करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पे जाने से पहले अपन एग्जांपल देखते हैं। Let's take a reaction in a balanced condition AA plus BB, it converts into product. See, in the previous session we studied about the rate law. The link of previous session you get in description box. Correct. Okay. In rate law it was mentioned that from now onwards rate expression is done in terms of concentration of reactants. So for the rate expression we are not focusing on the concentration or stoichiometric coefficient of product. Right. So A and B is reactant, small a and small b is stoichiometric coefficient. Here you have to write this. A and B is equal to reactant and small a and small b is stoichiometric coefficient with respect to A and B. Correct. Now, rate expression of this reaction can be given in this way. Rate is equal to K. K stands for rate constant into concentration of A raised to X into concentration of B raised to Y. Oh, so here you have the question. Why not small a and small b on the exponent of a and b, and why x and y? Because stoichiometric coefficient do not have any relation with this exponent of concentration, because x is equal to order of reaction, that is the topic reaction order of reaction with respect to A, and y is equal to order of reaction with respect to B. Now, what is the total order of reaction? Order of reaction expressed by N, not mole, it's an order of reaction. So, total order of reaction is equal to X plus Y, and X plus Y may or may not be equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction. So here we have the first and the most important point of order of reaction. It do not have any relation with a stoichiometric coefficient. Correct. Okay, and order of reaction is the exponent of concentration of reactant. So here our definition. Ready? What is order of reaction? The sum of power of concentration. The sum of power of concentration of reactant, not product. ये ध्यान रखना है most especially. So the sum of power of concentration of reactant in the rate law expression is known as order of reaction. So it's again a simple definition.
The sum of power of concentration of reactant in the rate law explanation in the rate law expression is known as order of reaction. Now let's take a look on the actual example reactions. Number 1, CHCl3 chloroform plus Cl2, it converts into carbon tetrachloride, that is CCl4 plus HCl. These are some of the important organic compounds, correct? Now the rate of reaction R is equal to K is rate constant, correct? So the rate law or the rate of reaction R is equal to K into CHCl3 exponent 1 and Cl2 its exponent is 1 by 2. Now the question is, the reaction is in balance mode? Yes, you can check it, the reaction is in balance mode. So stoichiometric coefficient of CHCl3 and Cl2 is equal to 1, but exponent of CHCl3 is equal to 1. So you get the idea that exponent may or may not be equal to stoichiometric coefficient, but Cl2 raised to 1 half. So again, order of reaction is experimental quantity. Now total order of reaction is equal to 1 plus 1 by 2, and that is equal to, yes, 3 by 2. Correct. Now see, now we are going to take two different example. H2 plus I2, it converts into 2HI. Now what is the order of reaction? So rate law, rate expression is equal to R K into H2 raised to 1, I2 raised to 1. So now order of reaction is equal to, yes, 1 plus 1, that is 2. But some of the almost same type of example, H2 plus I2. Now the third example is H2 plus Br2. H2 plus Br2, it converts into, okay, H2 plus Br2, it converts into 2HBr. Correct. Is the charger. Hmm. Hmm. Now, the same type of reaction H2 plus I2, H2 plus Br2, but rate expression R is equal to rate constant K into H2 raised to 1, but Br2 raised to 1 half. So, order of reaction as N is equal to 1 plus 1 by 2, that is equal to 3 by 2. So here we have order of reaction is equal to 3 by 2. Again, it's proved that order of reaction is a purely experimental quantity. Now the important points. Important points of, देखिए हर एक टॉपिक को ऐसे हेडिंग करके ही लिखना है। एक के दो फायदे, एक तो एक प्रॉपरली वेल मैनेज्ड आंसर दिखेगा, एंड द सेकंड बेनिफिट इज आपको याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा. सो नंबर 1, order of reaction is experimental quantity. Experimental quantity. See, now how you can get the value of order of reaction of any reaction? तो इसके लिए क्या किया जाता है, मान लो कोई एक रिएक्शन है H2 और Br2 के बीच में रिएक्शन होकर HBr बन रहा है. अब क्या होगा कि 9 AM को रिएक्शन स्टार्ट हुआ है. सो 9 AM, 9:15, 9:30, 9:45 एंड 10. मान लेते हैं कि भाई 10 AM को वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है. So we have the different data of 4 observation at 4 different points. अब ये जो अपने को 4 observation 4 concentration मिले H2 Br2 और HBr के, उसको अपन रेट एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे. At that time, order of reaction is taken is assumed x and y with respect to H2 and Br2 respectively. के बाद वो तीनों इक्वेशंस को एक दूसरे में क्लब करके x और y का वैल्यू गेन किया जाएगा. माने विदाउट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम कैन नॉट गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट्स व्हाई इट इज अ प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. नाउ second point, value of order of reaction, it can be 0, it can be a positive whole number, or it can be a positive integer number. That you already get idea about integer number from the equations. Correct. Point number 3. Order of reaction n completely independent of stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction. Correct. Point number 4. Now, in previous session we discussed about two type of reactions: simple reaction, complex reaction. Simple reaction, the reaction is completed in one step.
So there is no any concept about the confusion of which step is taken for the calculation of order of reaction. But for complex reaction, there is a confusion. Now the solution is RDS. Solution is RDS. In complex reaction, rate determining step is taken as the calculation of order of reaction. And how you get the idea about the rate determining step? Slow step of all the reaction is called order of reaction. Correct. Slow step of all the reaction called order of reaction. Yes. So these are the four important points, and this is about the 2 marker short note. Yes. It's simply, or you can say that it can be a two or can be in 2 or 3 mark. Correct. 3 मार्क तक आए तो भी कुछ गलत नहीं है क्योंकि पूरा 3 मार्क का पैकेज है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट नहीं हैंड रिटन नोट्स सबसे पहले जिसका आपको इंतजार होता है हैंड रिटन नोट्स. चलिए सो क्वेश्चन नंबर 9 टेक अ स्क्रीनशॉट. नंबर 1 देन यहाँ से बाकी दर्शक. हाँ ठीक है. नंबर 2 थोड़ा सा ही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट इज नंबर 3. अच्छा ये 2 3 4 दो बार आ गया है कोई बात नहीं. यहाँ से आप ले सकते. So these are the important points of order of reaction. Correct. Chalo. Now question number 10. Again important question with respect to theory as well as example. This question can be asked maximum in 2 marks. But जैसे आज तक इस पर से क्वेश्चन आया नहीं तो क्या आता है एमसीक्यू आता है. और कभी कभी एग्जांपल में इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से आपको एग्जांपल में आइडिया आएगा कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है. नाउ रीड द क्वेश्चंस. Derive the unit of rate constant K for different order of reaction. तो अपने को यहाँ क्या बोल रहा है कि मान लो कोई एक रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट डिराइव करो. फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो अपने को रेट कांस्टेंट की यूनिट्स डिराइव करना है. नाउ लेट्स टेक a reaction example of any reaction is AA plus BB. It converts into yes product. Correct. Now rate expression is equal to K into yes A raised to X where X and Y is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. देखिए ये आपको कंपलसरी साइड पे लिखना है कि भाई ए एंड बी क्या है, रिएक्टेंट है. स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. और एक्स एंड वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. करेक्ट. चलिए so now total order of reaction is equal to yes x plus y because total order of reaction is equal to the sum of concentration of reactant in a balanced chemical equation, or if it is complex reaction then it is calculated for the rate determining step or slow step. Correct. Now इस रिएक्शन में रेट माने आर. करेक्ट. रेट माने आर. किसके यूनिट डिराइव करने हैं, के. तो अपन के को हीरो बनाते हैं. रेट डिवाइडेड बाय ए रेज टू एक्स into b raised to y. Now what is the unit of, because here the question is derivation of unit, so what is the unit of rate of reaction? That is mole into liter inverse into second inverse. Correct. Concentration divided by time. अच्छा आप यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हो लेकिन अपन ने क्या किया, टाइम को सेकंड ले लिया है. Now A and B it's a concentration of reactant, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ concentration whole raised to x plus y. Correct. Now what is mole per liter? अच्छा इसमें आप एक और काम भी कर सकते हो. अपन इस रिएक्शन को एकदम सिंप्लीफाई तरीके से लिखें. एक बात बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे भी मैं कंसंट्रेशन लिखा. क्यों लिखा कंसंट्रेशन, आप देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म इक्वल हो गया. तो अगेन कंसंट्रेशन इनटू सेकंड इनवर्स होल डिवाइडेड बाय concentration raised to n. Now what is n? Order of reaction. Correct. So can I convert this equation in concentration raised to x raised to a upon x raised to b? So it's like x raised to a minus b. So concentration raised to 1 upon concentration raised to n. So it's like concentration raised to 1 minus n. Second inverse as it is. So now this becomes अपन
final equation for the derivation of value of K. K is equal to mole into liter inverse into second inverse whole raised to mole per liter whole raised to 1 minus n. So this is the final equation for the derivation. Now we are going to take the different examples of order of रिएक्शन. सबसे पहले अपन लिखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन. उसके बाद वो जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे. तो हियर वी हैव टाइप ऑफ रिएक्शन, करेक्ट, एंड ऑर्डर, सॉरी, एंड यूनिट of rate constant, yes, and unit of rate constant. Now see, number 1 zero order reaction, number 2 first order reaction, number 3 second order reaction, correct. Now zero order reaction के लिए order of reaction कितना होगा? हाँ, zero होगा. अब क्या करना है अपने को? order of reaction is the value of n. तो n की जगह 0 रख दो, x raised to 1 minus 0, so it's x raised to 1, anything raised to 1 is equal to anything, मतलब x raised to 1 is equal to x. तो अपने को यहाँ पे यूनिट क्या मिलेगा? मोल इनटू लीटर इनवर्स, ऐसे ही जो का तो रहेगा, रेज टू सेकंड इनवर्स, अगेन सिंपल, करेक्ट. अच्छा, सो कैन आई से दैट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इट इज 1. so mole into liter inverse whole raised to 1 minus n, mole into liter inverse whole raised to 1 minus n. Here value of n is equal to 1. So it's like 1 minus 1, 0, second inverse. हाँ, तो अभी बताइए. Unit of first order reaction for rate constant is equal to second inverse or time inverse. If the time is given in hours, so you can write hour inverse. Correct. Now, value of n for second order reaction is equal to 2. Correct. Okay. So mole into liter inverse whole raised to 1 minus n, that is equal to 1 minus 2 second or time inverse. Now see, 1 minus 2 is equal to minus 1. minus 1 को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. So now mole raised to minus 1 into liter, minus 1 into minus 1 plus 1 liter as it is, and second inverse. देखिए कभी कभी क्या किया होगा एग्जांपल में कि आपको लीटर इंटू मोल इनवर्स दिया होगा, तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आपको आंसर लिखना है, सो बेटर टू राइट मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स. आगे पीछे कर. चलिए एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3. यस, सो मोल इनटू लीटर, अब डायरेक्ट लिखते हैं. सी 1 minus 3 is equal to minus 2, करेक्ट. 1 minus 3 is equal to minus 2. तो मोल इनटू लीटर इनवर्स तो था, अब minus 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल रेज टू minus 2, लीटर रेज टू, हाँ, प्लस 2. सही बात है ना? 1 minus 3 is equal to minus 2, minus 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, सो मोल रेज टू minus 2, लीटर रेज टू प्लस 2. क्यों? क्योंकि लीटर के एक्सपोनेंट में तो minus 1 था, एंड दिस इज second inverse. So this is the unit of third order reaction, and this is all about this 2 marker question for the derivation of order of reaction with respect to different order of reaction for rate constant. Correct. So ये हो गया. ये लो, चलो question number 10, screenshot number 1 done. Yes, and finally यहाँ तक तो था. screenshot number 2 second order तक अपने को लिखना है टेस्ट एग्जाम. Correct. Now let's take a look on a next question that is again an important quantity or parameter for any chemical reaction. एक और बात, ये जो टॉपिक है ये कब का है? ये तब का है जब ये माना जाता था कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नामक कोई चीज नहीं होती है. आगे अपन आएगा एक कॉलिजन थियरी. ये कॉलिजन थियरी जब चलता था उस टाइम का ये कंसेप्ट है. तो मतलब मान लो ये बहुत पुराना कंसेप्ट. ये मॉलिक्यूलरिटी ये एज्यूम करता है कि भाई रिएक्टेंट्स आर अ हार्ड स्फीयर, माने तब तक दोनों में रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक दोनों एक दूसरे के साथ जोर से टकराए नहीं, माने कोलिजन ना हो. करेक्ट. नाउ एज यूजुअल आवर कंसेप्ट इज फर्स्ट डेफिनेशन, बट डेफिनेशन तो अपने को आता नहीं है. चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें डेफिनेशन पे जाने से पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे फोकस करते हैं. टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन molecularity. It's just a number, nothing else. Molecularity is just a number. कैसे पता चलेगा कि भाई
कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स taking part into the elementary reaction, we have three types of reaction based on molecularity. Number one, number one, monomolecular reaction. Monomolecular reaction. Number two, bimolecular reaction. कहीं कहीं ये डायमोलिकुलर भी लिखा होगा. And number three, the trimolecular reaction. ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन. करेक्ट. चलिए एग्जांपल लेते हैं. अच्छा डेफिनेशन बाकी है. अच्छा इनके इन तीनों के भी तो डेफिनेशन वो भी तो बाकी है. कोई बात नहीं. तो पहले अपन एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि अपन ने क्या लिया, NH4NO3 लिया, NH4NO2 लिया. अच्छा इसका नाम क्या है नहीं आता मुझे, लेकिन मेरे को इतना आता है कि NH4+1 इज अमोनियम एंड NO2 इज नाइट्राइट. अच्छा तो इसका नाम रेडी हो गया, अमोनियम नाइट्राइट. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के नाम याद रखने से पूरा काम बन जाएगा. करेक्ट. सो NH4NO2 it converts into N2 plus 2H2, N2 plus H2. So it's a kind of thermal decomposition. On reactant side we have only one reactant. One कैसे पता चला? From its stoichiometric coefficient. Bimolecular reaction. H2 plus I2 it converts into 2HI और उसी रिएक्शन को आप उल्टा भी लिख सकते हो. 2HI it converts into H2 plus I2. So here it's not about the type of reactant, number of reactant. तो यहाँ number of reactant की दो है. चलिए ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन. तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल अपने को लेना है. 2NO plus O2 it converts into 2NO2. See 2 plus 1. So total number of reacting species is equal to 2. Total number of reacting species 2. Here it's 3, here it's 2, and here it's only 1. So this is called the molecularity of reaction 1, 2 and 3. तो भाई molecularity of reaction का definition आप समझ में आ गया कि किसी भी रिएक्शन में टोटल कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द molecularity ऑफ रिएक्शन. या कितने रिएक्टेंट कोलाइड हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द molecularity ऑफ रिएक्शन. करेक्ट. अब जाते हैं molecularity की डेफिनेशन. द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, the number, it's again a number of reacting species. Reacting species. अब ये reacting species क्या हो सकता है? It can be atoms, it can be ions, or it can be molecules. Correct. अच्छा. So the number of reacting species which take part in collision, simultaneously. Word important है. Simultaneously मतलब एक साथ. Simultaneously in order to bring about the chemical reaction. देखो, the number of reacting species, atoms, ions or molecules which undergone collision in order to complete the reaction, that number is known as molecularity. चेक कर लो आप, एग्जांपल देख लो अभी. चलिए तो इसमें molecularity 1 है. अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते, उसके बाद इनकी डेफिनेशन बताएंगे. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इट लाइमस्टोन, इट कन्वर्ट्स ऑन हीटिंग, it converts into CO, that is calcium oxide plus CO2 is released, that is carbon dioxide. So again in this reaction there is only one reactant. बस हो गए अपने तीन डेफिनेशन. बाय वन गेट टू फ्री का यहाँ पे स्कीम है, आप मॉलिक्यूलर याद कर लो, फिर बाय ट्राई तो अपने आप हो जाएगा. So the reaction in which only one reacting species, the reaction in which only one reacting species is involved is known as monomolecular reaction. One हटाओ टू लगाओ. The reaction in which only two reacting species are involved is known as bimolecular reaction. And the reaction in which there are three reacting species are involved, that is known as trimolecular reaction. Correct. So that is about the definitions and types of different reaction based on molecularity. अच्छा अब आप बोलोगे कि भाई यूनी बाय और ट्राई तक तो समझ में आया, बट व्हाई इट्स नॉट अ टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन? Because it's not possible, because it from experimentally it is proved that a maximum three reacting species collide with each other properly and converted into reactant. तो आप बोलोगे कि फिर उन रिएक्शन का क्या जिसमें ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो उन रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर अंडर द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पहले कोई एक दो या तीन रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे, फिर उसमें से कोई इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट के साथ चौथा या पांचवा रिएक्शन फिर से रिएक्ट करेगा.
करेक्ट। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, इसको भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नाउ नंबर 2, मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, मैंने मॉलिक्यूलरिटी में कहीं पे भी बोला आप एक्सपेरिमेंटल लो, ऑब्जर्वेशन लो, कंसंट्रेशन टाइम नहीं बोला। सिर्फ क्या किया अपन ने, चेक करो आप। मॉलिक्यूलरिटी में अपन ने क्या किया, सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से नंबर ऑफ रिएक्टेंट काउंट किए। तो भैया बताओ ये एक्सपेरिमेंटल हुआ या थियोरेटिकल हुआ? प्योरली theoretical concept, a purely theoretical concept, and it do not have any experimental observation. value value of molecularity, it's not zero, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि भाई क्लास में 0 स्टूडेंट कितने, कोई भी नहीं, नो रिएक्शन। करेक्ट। तो उसी तरह अगर मॉलिक्यूलरिटी 0 मतलब कोई रिएक्शन है ही नहीं, तो टकराएगा कौन, है ना? सो इट्स वैल्यू cannot be equal to 0, its value is only and only positive whole number. now why whole number? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता एक रिएक्टेंट आधा है और एक दूसरा रिएक्टेंट आधी बॉडी वाला है, एक पूरा एक आधा आधी बॉडी वाला, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इंसान ना मॉलिक्यूल। करेक्ट। so that is the third point. And the fourth point, because it is theoretical concept, it purely depends on stoichiometric coefficient of reactant in a balanced chemical reaction, so this is about the important points of molecularity. अब अभी मैंने ये बोला था कि you cannot calculate molecularity of complex reaction, और एक पैरामीटर अभी अपन ने पढ़ा है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है उसका एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, KClO3। देखो ये रिएक्शन आपको कंपलसरी बैलेंसिंग के साथ याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। प्लस 6 FeSO4, FeSO4 जहां जाएगा H2SO4 को लेकर जाएगा, तो ये याद हो गया। KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट, इट कन्वर्ट्स इनटू KCl प्लस 3Fe2SO4 थ्राइस प्लस 3H2। देखो बैलेंस याद रखने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक साइड नंबर याद रख लो। आप एक काम करो, ये प्रोडक्ट साइड वाला नंबर याद रख लो, 133 या तो 13 3 याद रखो, 133। तो ऑटोमेटिक फिर इसका आप बैलेंसिंग कर सकते हो। नाउ वी कैन नॉट डिफाइन द molecularity for this reaction, but what about order of reaction? This is actually a second order reaction, second order reaction है कि भाई, क्यों? क्योंकि वो उसके लिए तो आपको इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तक पहुंचना पड़ेगा, और उसके लिए मैकेनिज्म तक जाना पड़ेगा, और मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का कम। हाँ, लेकिन अब अपन एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं कि अगर कोई रिएक्शन ऐसा है, भले ही जो कॉम्प्लेक्स है, जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अगर उस रिएक्शन के स्लो स्टेप तक अपन पहुंच गए, फॉर एग्जांपल H2 plus H2O2, it converts into H2O plus O2. Now see, this reaction occurs in alkaline medium in presence of iodide catalyst, alkaline medium। और ये रिएक्शन है क्या, बाय द वे? इट्स अ decomposition, of hydrogen peroxide H2O। 2H2O2 molecule converts into 2H2O plus O2। ये रिएक्शन एक्चुअली H2O2 को रूम टेम्परेचर पे खुले में छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन को रिलीज होकर ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा। करेक्ट। अल्कलाइन मीडियम होगा, आयोडाइड एज कैटलिस्ट I माइनस होगा, फिर थोड़ा सा फास्ट होगा। चलिए यहाँ पे तो समझ में आता है। एक और बात आपको ये भी पता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ओल्ड आइडिया सर जी। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इट्स प्रूवन फ्रॉम सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन, यस, बट इट्स नॉट कंज्यूम केमिकली एंड फिजिकली। तो भाई यहाँ पे I माइनस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इट अकर्स इन 2 स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, कम ऑन, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? तो H2O2 का एक मॉलिक्यूल आएगा, उसको I माइनस के साथ रिएक्ट करना है। हमें प्रोडक्ट में 2 H2O चाहिए, तो यहाँ ये लीजिए, ऑलरेडी एक H2O बन गया। और वो कैसे बना? आयोडीन ने क्या किया, H2O2 में से एक ऑक्सीजन को अपने पास लिया, आजा आजा, वो आयोडीन तेरा। तो आ गया ऑक्सीजन, उसने प्यार से बुलाया तो वो चला आया। हाँ, अभी क्या होगा, ये IO माइनस क्या करेगा, H2O2 के दूसरे मॉलिक्यूल में जाकर तोड़ फोड़ करेगा, और यहां से भी वो क्या, H2O2 के दूसरा मॉलिक्यूल, यस, यहां से भी वो क्या करेगा, एक H2O बना देगा, H2 बना देगा। और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल O2 का रिलीज हो जाएगा। अब देखो एक मॉलिक्यूल O2 का आ गया। अब अगर मान लो कि भाई मैं इसका सम अप करता हूँ, तो IO माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस I माइनस आएगा, तो I माइनस अगेन इट गेट्स कैंसिल आउट।
तो बेसिकली I माइनस तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फाइनल रिएक्शन में फाइनल रिएक्शन में तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा. So as a final reaction we get 2H2O2, it converts into gas 2H2O plus O2. करेक्ट. भाई अब इसके मॉलिक्यूलरिटी का क्या करना है? तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है. स्लो स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में थोड़ा सा यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही डिसाइड करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी क्या है. तो अब एक बात बताओ कि मॉलिक्यूलरिटी कितना है? हाँ, 1 मोल प्लस 1 मोल दैट इज इक्वल टू 2. मॉलिक्यूलरिटी 2 है. अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2. क्यों? क्योंकि H2 बैलेंस केमिकल रिएक्शन और स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में H2O2 और I माइनस दोनों का एक्सपोनेंट 1 है. And that's why, so now we can say that for the elementary reaction or for the slow step, for simple elementary reaction, molecularity is equal to order of reaction. That's all about the question of molecularity. Again, a most important 2-mark question. Correct. चलिए, so this is molecularity and it is a maximum 2 to 3 mark question. जो मैं important 2 mark question की बात कर रहा हूँ वो इसके बाद आएगा. So now here we have the answer. Screenshot number, एक मिनट, आंसर क्वेश्चन के साथ लेना है. हाँ, दिस इज स्क्रीनशॉट नंबर 1 के बाद आएगा. चलिए यहाँ तक ले आते हैं. दिस स्क्रीनशॉट नंबर 2, राइट. और मैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से फिर से ले ली. चलिए, so this is screenshot number, all about the molecularity and order of reaction. Important 2 marker question, and that is order of reaction and molecularity. इन दोनों के बीच का डिफरेंस. ऐसे क्वेश्चन पूछने से फायदा ये होता है कि स्टूडेंट के दोनों कंसेप्ट एकदम परफेक्टली या सही है कि नहीं चेक हो जाता है. 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट. बहुत सिंपल सा हिसाब है. यहाँ पे अपन सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. डिफरेंस का एक सिंपल और एक नया मेथड है कि आप डिफरेंस एज इट इज 1 2 3 4 करके मत. चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी करना क्या है कि सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये बताओगे कि भाई कौन से प्रॉपर्टी पे मैं ये दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. करेक्ट. तो अपने लिए सबसे पहला कोई भी डिफरेंस में सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए डेफिनेशन एंड द लास्ट पॉइंट इज एग्जांपल. और ये जो डिफरेंसेस आते हैं हमेशा उनको अच्छे से लिखना है. प्रॉपर टेबल, यू हैव टू यूज स्केल हियर, है ना. हाँ, शायद काफी हो कि अपन बस आगे ले लेते हैं. और इसको बुरा लगेगा मेरे को क्यों छोटा रखा. ये ले भाई, तेरे को भी थोड़ा सा आगे ले ले. चलिए, नाउ डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होगी बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हाँ, फटाफट से रिपीट भी हो जाएगी ये दोनों नाउ. द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर, देखो आगे जो डेफिनेशन लिखा है वही सीधा यहाँ आपको कॉपी पेस्ट करवाऊंगा. द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन known as order of reaction. Molecularity, the sum of या तो फिर ये भी बोल सकते हो आप कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी. चलिए, सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा फॉर द डिफरेंस. सेकंड पॉइंट आएगा थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. क्या होता है? EXP होता है. EXP experimental quantity and molecularity is purely a theoretical concept. It do not have any experimental derivation, experimental observations. Number 3, value. चलिए, order of reaction, it can be 0, it can be a whole number or it can be an integer number. But molecularity का फिक्स है कि भाई इट्स ओनली एंड ओनली पॉजिटिव होल नंबर. पॉजिटिव होल नंबर, करेक्ट. नंबर 3 के बाद कौन सा आता है? 4th आता है. मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है इसलिए, है ना. चलिए, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. बात अपने को ये करनी है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन, और
चलिए काम करते हैं, लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड मॉलिक्यूलरिटी तो भाई है ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नंबर 5, टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए नंबर 5, order of reaction can be defined for simple or elementary, or it can be defined for complex reaction, but molecularity can only be defined for, yes, a simple reaction. For complex reaction, molecularity do not have any importance. Number 6, एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, H2 plus I2 it converts into 2HI। एक काम कर, बैलेंस हो गया है क्या? हाँ हो गया है। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। वहीं पे अगर मैं दूसरा रिएक्शन लिखूं H2 plus Br2 it converts into 2HBr, तो भाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? अभी अपन ने किया था, कितना है? हाँ 3/2। वहीं पे अगर इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी काउंट करना है तो 2 आएगा, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी अगर काउंट करना है तो 2 आएगा। तो अगेन द एग्जांपल ऑफ one of the most important 2 marker difference of this chapter, and that is order of reaction versus molecularity। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये लो, चलिए सो पॉइंट नंबर 3 तक आपका स्क्रीनशॉट होना है। 3 के बाद मैं 4 से ले लेता हूँ ताकि कुछ भी डबल ना हो जाए, है ना। दिस इज अबाउट पॉइंट नंबर 4, 6.3 मार्क्स, 4 पॉइंट्स, 2 मार्क्स। आप बोलोगे 4 पॉइंट्स में कौन से लिखे कौन से नहीं। पहला डेफिनेशन, लास्ट में एग्जांपल, 2 पॉइंट हो गए। अब उसके अलावा 2 पॉइंट जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो आप लिख दो। नाउ one of the most important 4 marker question of this chapter, इस चैप्टर में 4 मार्कर क्वेश्चन बहुत कम है, करेक्ट। फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं एक्चुअली उसमें से एग्जांपल्स आते हैं और ज्यादा आते हैं, राइट। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन। और अगर मान लो ये क्वेश्चन डाइजेस्ट जब तक नहीं हुआ तब तक इसके बाद वाला, इससे भी ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही 4 इक्वेशंस को डिराइव करना है, वो माइंड में कब आएगा, तो खास ध्यान देना। ये थोड़ा सा सिंपल है। सी क्या बोला है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड डिफाइन करो। चलिए सबसे पहले एज यूजुअल द फॉर्मेट ऑफ आंसर, डेफिनेशन आएगा किसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। लेकिन वो तो अपने को आता नहीं है ना। अपने को तो क्या आता है? अपने को तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है भाई, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 0 एक्सपोनेंट, बस ये हो गया डेफिनेशन। तो अब बोलो डेफिनेशन क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लो इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सॉरी इफ रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जो नीचे लिखा है उसके हिसाब से इन रेट एक्सप्रेशन, okay, in rate expression of reaction, if the rate of reaction is directly proportional to zero exponent of reaction, then it's known as zero order reaction। मतलब n is equal to 0 है और इसका exponent क्या होगा? 0 होगा। Now to derive this 4 different area equation, ये जरूरी नहीं है कि 4 मार्क्स में यही आए, ये भी हुआ एक बार कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ ये डिराइव करने को है। तो अपन फॉर्मेट ऐसे बनाएंगे कि हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट्स में इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके आगे वाले में जब जाएंगे तो प्रीवियस का लास्ट इक्वेशन, ताकि मिनिमम कम से कम अपने को याद रखना। करेक्ट। अभी क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो ये चारों इक्वेशन डिराइव करने के लिए अपने को, जैसे अपन ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किया था, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किया था फर्स्ट पार्ट में, उसी तरह यहाँ पे कोई एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। R कन्वर्ट्स इनटू P, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ R एंड P इज इक्वल टू रिएक्टेंट। चलिए सो ये हो गया एक रिएक्शन, है ना। इसमें R क्या है? R क्या है? रिएक्टेंट है, और P क्या है? प्रोडक्ट है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है किसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। नाउ फर्स्ट डिफरेंशियल रेट, आपको पूरा लिखना, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो भाई डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे, उससे पहले ये तो लिख दो, R is equal to K into R raised to 0। बताओ 0 क्यों? बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सपोनेंट 0 आएगा। चलिए बढ़िया।
अब माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डियर केमिस्ट्री आई लव यू, ये बोलो हर रोज जब भी केमिस्ट्री की बुक को पढ़ने बैठते हो, डियर केमिस्ट्री आई लव यू सो मच। तो वो भी आपसे प्यार करेगा, और जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं, तो केमिस्ट्री भी आपके फायदे के लिए काम करना शुरू करेगा। पन्ना पन्ना जर्रा जर्रा आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए, सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्स रेज टू जीरो इज इक्वल टू 1। तो बन गया ये लो। अब आप बोलोगे ये तो देखा हुआ है अपन ने कहीं पे, कहाँ देखा है। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त मैंने बोला था ना, यही आगे चल के अपन इसको बोल देंगे डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और ये लो हो गया। हाँ, इतना सिंपल है भाई, क्या करूं मैं, अब है तो है, और मैं पढ़ाता हूं तब तो सिंपल ही लगेगा। नंबर 2, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या करना है अपने को, मैंने क्या बोला था, कोई भी नया क्वेश्चन शुरू करो, प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट इक्वेशन उठा कर ले आओ, किडनैप करके ले आओ उसको। तो ये लो अपन लास्ट इक्वेशन को किडनैप करके यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस डी आर, डी आर को इस तरफ रखते हैं और बाकी सबको जो डी आर नहीं है उसको उन तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो अपना डी आर है वो कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं भाई, डी आर नेगेटिव कैसे हो सकता है, बिकॉज इट इज डी आर, ही और शी इज डी आर, है ना। तो एक काम करते हैं ना, डी आर को इस तरफ रखो, माइनस नेगेटिव को इस तरफ ले लो, माइनस के डी टी। अब बोलो क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। टेकिंग, यहाँ ये लिखना पड़ेगा भाई, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अभी सिर्फ ये डेरिवेशन पे आप ध्यान दो और कुछ भी मत सोच, क्योंकि आंसर लिखवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, लेकिन उससे पहले मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई मैं आपको आंसर समझाऊं। इंटीग्रेशन करना है तो कहां से कहां तक, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। तो इंटीग्रेशन आर टी, मतलब ये टी टाइम पे, टी टाइम तक इंटीग्रेशन होगा, करेक्ट, डी आर। अच्छा, ये तो आप बोलोगे कि भाई किसका इंटीग्रेशन है, आई कैन से दैट इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ 1। और जब जब 1 का इंटीग्रेशन होता है, जैसे अगर इंटीग्रेशन 0 टू x dx, तो आप लिखते हो x, तो dx वाला x लिख दिया। अब देखो केमिस्ट्री स्टूडेंट को इतना ही समझना है कि भाई dx में अगर x लिखा तो यहाँ जो dr है उसमें यहाँ पे r आप लिख दो, हो गया काम खत्म। चलिए, तो दैट इज दी राइट साइड इंटीग्रेशन एंड इट्स आंसर। अब बात कर, सॉरी, लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन एंड इट्स आंसर, बात करते हैं राइट साइड की। 0 टू t, यही टीम टाइम तत्वों को इंटीग्रेशन अपन ने किया, 0 टू t लाइक माइनस के डी टी। चलिए, कब, माइनस के टी प्लस आई, वेर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कई कई रेफरेंस बुक में इस आई को सी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आई बोलो सी बोलो, है ना। अब ये एक इक्वेशन हो गया अपने पास, लेकिन आई का वैल्यू डिराइव करना पड़ेगा, आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0, मान्य हो अगर आपने 9 AM को रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट बनने भी शुरू नहीं, तो अभी कंसंट्रेशन कितना होगा, हाँ, R0 की जितनी। एक काम करो ना, RT की जगह आप क्या लिखोगे, RT की जगह क्या लिखोगे, R0। R0 इज इक्वल टू माइनस के प्लस, मतलब टी अपन ने कितना लिया, 0 लिया, आई। करना क्या है भाई अपने को, आई का वैल्यू निकालना है, करेक्ट, आई का वैल्यू निकालना है। तो अभी क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें आई का बहुत सिंपल सा वैल्यू आ गया, मैं एक काम करता हूँ जरा यहाँ पे ही लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू R0। तो क्या करोगे अभी बताओ, ये जो अपना इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसमें अपन आई का वैल्यू लिखेंगे, करेक्ट। चलिए, ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, यस, ओके। तो आई के वैल्यू मैं उस इक्वेशन में डालता हूँ जिसको मैंने स्टार किया था, आर टी इज इक्वल टू, आर टी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, माइनस के टी प्लस आई था, तो उसकी जगह अपन ने क्या लिखा, R0। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, कम ऑन, सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। लेकिन इस पर से अपने को आगे नहीं बढ़ना है, थर्ड पोर्शन में क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दिस इक्वेशन लुक्स लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, इसमें जो ग्राफ आएगा वो चढ़ता आएगा, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, भाई डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि m का वैल्यू माइनस है, m क्या होता है, स्लोप होता है। अच्छा, ग्राफ का नाम आते ही सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने माइंड में रेज होता है, दैट इज व्हाट इज ऑन y एक्सिस एंड व्हाट इज ऑन z एक्सिस। तो अब ये तो बहुत ही आसान है भैया, क्यों, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, कापली है मेरे क्वेश्चन का ऊपर ही, चेक करो, बोलो y एक्सिस। अच्छा, ये मैंने लास्ट सेशन में याद करवाया था ना, y एक्सिस इस चैप्टर के सारे ग्राफ में क्या लोगे,
ग्रीन ले लेते हैं। चलिए y एक्सिस पे क्या लोगे, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्शन का। x एक्सिस पे क्या लोगे, टाइम, टाइम t। चल अब ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप का वैल्यू नेगेटिव है। ये मैथमेटिकल बात हो गई। लेकिन अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि भाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग ही आना चाहिए ना। और पूरा तो कभी जीरो होगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है टाइम को कभी एक्स एक्सिस पे टच नहीं करवाना है ना। अच्छा अब क्या करना है, तो रेट देखो, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के पीछे गोल क्या रहता है, गोल ये रहता है कि दो वैल्यूज निकाली जाए। सबसे पहली वैल्यू होती है इंटीग्रेशन, ये मतलब t, करेक्ट। सो ये क्या होगा, r0 होगा, मतलब ये जो पॉइंट इंटीग्रेशन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट, ये यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, r0। तो ये पॉइंट पे मान लो अगर अपने पास 10 मोलर रिएक्टेंट है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 मोलर, फिर धीरे 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 उसमें से डिक्रीज आएगा। अभी दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, रेट कांस्टेंट k। तो यहाँ पे स्लोप, स्लोप का जो वैल्यू है वो क्या देगा, माइनस के। क्यों माइनस के, क्योंकि यहाँ m की जगह अपने को क्या लिखा हुआ है, माइनस के लिखा हुआ है, और स्लोप नेगेटिव है, तभी ये ग्राफ आएगा। इतना सा छोटा सा प्यारा सा ग्राफ है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम t। बस इतना सा आपको लिखना है, एंड दैट इज अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेशन इक्वेशन। चलिए थर्ड इक्वेशन कौन सा था, बोलो बोलो फटाफट। क्वेश्चन में थर्ड इक्वेशन कौन सा था, हाँ, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। और मैंने आपको बोला था हम क्या करेंगे, प्रीवियस फोल्डर का इक्वेशन उठाएंगे। चलिए तो प्रीवियस फोल्डर का लास्ट इक्वेशन कौन सा है, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। रेट कांस्टेंट के का इक्वेशन डिराइव करना है कि नहीं, तो उसको हीरो बना लेते हैं, उसको इस तरफ बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ इस तरफ। तो प्लस के टी और आर जीरो, आर टी इस तरफ चला जाएगा, तो आर टी माइनस आर जीरो माइनस आर टी, है ना। अब जब के को हीरो बना ही दिया तो पूरा बनाते हैं। तो आर जीरो माइनस आर टी डिवाइडेड बाई टी, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन of rate constant for zero order reaction, and this is our equation number 3. Yes, great. So again third equation is derived. अच्छा अब अगर मैं बोलूं आपको कि आप k का जो इक्वेशन आंसर डिराइव करोगे उसका यूनिट कौन सा लिखोगे, तो आप बोलोगे मोल, मोल इनटू, ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वही यूनिट लगेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स। नंबर 4, हाफ, आधा जीवन बिताने का समय, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। चलिए ये क्या होता है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो। हाफ लाइफ पीरियड, मान लो कि कोई रिएक्शन 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है, या तो फिर मान लो कि कोई रिएक्शन में आपने स्टार्टिंग में 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया, अब 10 से 5 मोलर होने में वो 25 मिनट लगाता है, तो भाई 25 मिनट इज हाफ लाइफ पीरियड। मतलब एक रिएक्शन के हाफ साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। हमेशा शुरू करना डेफिनेशन, डेफिनेशन आता नहीं है कोई बात नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ होने में, इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा बनने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। चलिए तो ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन, अपन यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल। तो अब बताओ हाफ लाइफ पीरियड का एग्जैक्ट डेफिनेशन, द टाइम रिक्वायर्ड for the concentration of reactant to be half, initial concentration of reactant to be cutting half is known as half life period। प्रीवियस फोल्डर का लास्ट इक्वेशन उठाकर यहाँ पे सीधा सीधा उसके किडनैप करके लेकर आओ, तो ये लोग लेकर आए आर जीरो माइनस आर टी, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन डिवाइडेड बाय टी। अब टी को अपन क्या बोलेंगे, टी वन हाफ बोलेंगे, तो टी वन हाफ को हीरो बना लेते हैं, करेक्ट। आर जीरो तो आर जीरो है, लेकिन भाई टी वन हाफ, यानी कि जब टाइम टी वन हाफ होगा कंसंट्रेशन तो आधा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय सॉरी के आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि के को अपन इस तरफ बुला लिया है। तो एक बात बताओ भाई, एक काम करता हूं मैं, जरा सा एक लाइन, तो आपको ऐसे कंटिन्यूअस में लिखना है क्योंकि मेरा क्या स्क्रीन खत्म हो, फाइन। सो टी वन हाफ इज इक्वल टू, एक काम करो ऊपर से आर जीरो को कॉमन निकाल दो। अच्छा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिकॉज यू आर ऑल मैथ्स एक्सपर्ट, और मेरा क्या है इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, है ना। चलिए सो 1/1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो 2 जाएगा। तो फाइनली टी वन हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 क्या भाई,
ना 2k, ना 2 कहीं दिया 2k, 2k है ना 2k। चलिए ओके, so this is the final equation of half life period and it is equation number 4। एक बात बताओ, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन को लफ्जों में कन्वर्ट कर दो, शब्दों में कन्वर्ट करो। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ zero order reaction depends on initial concentration of reactant and inversely proportional to rate constant. So here we have per 4 and 4 marker question of zero order reaction goes on completed। चलिए तो चलते हैं हैंड रिटन नोट्स पे। या तो ये हो जाएगा अपना बट नंबर 1। एक मिनट अभी ले लो। नंबर 1 इंटीग्रेटेड रेडिक्वेशन तक ले लिया आपने, थोड़ा से आधा शायद कट गया होगा। ये हो जाएगा स्क्रीनशॉट नंबर 2। रेट कांस्टेंट तक ले लिया आपने, यस। और रेट कांस्टेंट के बाद फिर हाफ लाइफ। एक पेज पे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा लंबा है ना, तो उतना वहां पे शायद स्क्रीनशॉट के नंबर्स ज्यादा क्लियर। So the next most important question of this area, again 4 marker question। और अगर टुकड़े में भी आ सकता है, ये टुकड़े टुकड़े करके भी रख सकते हैं इसको कि भाई सिर्फ आप रेट क्वेश्चन का इक्वेशन डिराइव करो या हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन डिराइव करो। करेक्ट ओके, so let's start the last question of this session। करेक्ट, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 पूरा का पूरा अगर डाइजेस्ट कर लिया है देन नो टेंशन। चलिए सबसे पहले एज यूजुअल डेफिनेशन, एज यूजुअल जो हमको आता नहीं, तो फिर आता क्या है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू one exponent of reactant concentration, then it's known as order of reaction। बस तो ये याद हो गया, मतलब आपको डेफिनेशन याद हो गई। करेक्ट, देन सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जैसे लास्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट्स रखे वैसे ही अपन बिल्कुल सेम रखेंगे। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। चलिए उसके लिए याद करो अपन ने लास्ट में क्या किया था। हाँ लास्ट में क्या किया था अपन ने, तो एक इक्वेशन एक अज्यूम किया था कि भाई R कन्वर्ट्स इनटू P, और ये तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा वेयर R इज इक्वल टू रिएक्टेंट एंड P इज इक्वल टू प्रोडक्ट। चलिए नाउ रेट इज इक्वल टू यस K इनटू क्या आएगा बोलो, R रेज टू 1। बट भाई रेट क्या होता है, वो तो होता है माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू डियर केमिस्ट्री जो अपन ने बोला था k इंटू आर। बस तो ये हो गया, दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इतना सिंपल है क्या? हाँ भाई इतना सिंपल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए नाउ सेकंड पार्ट क्या था, अभी जो इसमें भी व्हाट इज द सेकंड पार्ट, यस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ना, बी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बोलो चलो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करना है। तो एज यूजुअल जो प्रीवियस पोर्शन का माइनस डी आर अपॉन डी इज इक्वल टू के इंटू आर, यहाँ पे आर रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस, हर लॉग और एल एन के जो कंसेप्ट है वो चेंज करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। चलो रीअरेंज कर लो, तो माइनस डी आर अपॉन आर, तो आर को अपन इस तरफ बुला लिया और जो के था उसको उस तरफ भेज दिया, के इंटू डी टी। करेक्ट, इसका अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि भाई डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू, माइनस को इस तरफ भेज दिया, सो माइनस के डी टी। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, वहां पे भी तो यही किया था, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलिए इंटीग्रेशन ले लीजिए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का लिया था एक बार याद करवा दो। इनिशियल कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन एट टाइम t तक का इंटीग्रेशन लिया था। करेक्ट, हाँ तो 1 अपॉन r। अच्छा इंटीग्रेशन 0 टू x 1 अपॉन x का, 1 अपॉन x dx का आप आंसर याद कर लो तब तक। और 0 टू t माइनस के dt। चलिए तो भाई ये तो इंटीग्रेशन हो गया ना, अभी इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई ln x। तो अरे मैंने ये x क्यों लिखा,
हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, यस dr ही आएगा, फाइन। तो ये क्या आएगा, ln r आएगा, करेक्ट। अच्छा, माइनस के dt का इंटीग्रेशन अपन ने लास्ट में कौन सा किया था, हाँ क्या किया था, माइनस के टी प्लस आई, तो भी तो वही आएगा ना, माइनस के टी प्लस आई। अब बताओ, फिर अपन ने बोला था अब आई का वैल्यू निकालते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्या किया था उसमें, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बताओ आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर जीरो, सीधा सा हिसाब है ना भाई, टाइम जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्टेड, ओके। तो इसमें वैल्यू रखो, अभी एल एन आर की जगह क्या रखोगे, एल एन आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, सो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ आई, आई इज इक्वल टू एल एन आर जीरो, है ना। देखो एग्जैक्टली इक्वेशन साथ साथ चल रहे हैं, वहां पे भी इसी इक्वेशन पे प्रीवियस में स्क्रीन खत्म हुआ था, करेक्ट। अब आई का वैल्यू उसमें लिख दो और अपने को एक बढ़िया सा इक्वेशन मिल जाएगा जिस पर से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन हर पेज पे लिखा हुआ है, ठीक, ओके। अभी फाइनल इक्वेशन, एल एन आर टी, अपने को किसका वैल्यू चाहिए था, आई का, और वो तो मिल गया, माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, करेक्ट। इक्वेशन नंबर कौन सा आएगा, ये 3 आएगा। अभी इस पर से ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फिर से वही बात, हाँ भाई, ग्राफ में वाई पे क्या लेना पसंद करोगे आप, वाई पे हम लेना पसंद करेंगे आर एल एन आर टी को, तो यहाँ पे वाई पे दिख रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन है ना, और एक्स एक्स पे आप किसको लेना पसंद करोगे, चलिए तो बोलो, एल एन आर टी यहाँ पे आएगा, और टाइम, टाइम को ले लेते हैं, करेक्ट। अच्छा, ये इक्वेशन कौन से इक्वेशन जैसा है भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, चलिए इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा या डिक्रीजिंग, बहुत सीधा सा हिसाब है भाई, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, क्यों डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों आएगा, क्योंकि स्लोप का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये लो बन गया अपना ग्राफ, हाँ। ग्राफ ड्रॉ ही इसलिए करते हैं ताकि इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन पॉइंट का वैल्यू मिले, तो ये लो मिल गया एल एन आर जीरो, दिस इज द मैक्सिमम इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और ये जो स्लोप है ये किसका वैल्यू देगा, ये कांस्टेंट का वैल्यू देगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, तो अपने को के का अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, और स्लोप जब जब माइनस में आता है तब तक डिक्रीजिंग स्लोप आता है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन आर टी वर्सेस टाइम टी, दैट्स ऑल। तो ये हो गया। अच्छा, अभी क्या करना है कि आप बोलोगे कि अभी चलो फटाफट चलते हैं फोर्थ इक्वेशन पे, इस पे हाफ लाइफ पीरियड पे, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा सा एक आध डेरिवेशन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया इन लोगों ने, थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर का वाला जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, ये रहा एल एन आर टी, अब इसमें एल एन आर जीरो को मैं इस तरफ ले लेता हूँ और के टी को सामने ही रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशंस एमसीक्यू में आते हैं भाई कौन सा इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ऐसे अलग अलग आपको क्या किया होगा, यहाँ पे एल एन आर टी आएगा, ऊपर वाला मेरे पास एल एन आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी, क्योंकि अपन ने आर वाले टर्म्स को एक साथ जमा कर दिया, एल एन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई, तो इसका क्या होगा, एल एन आर टी डिवाइडेड बाय एल एन आर जीरो, है ना, इज इक्वल टू माइनस के टी। अब यहाँ से एल एन को निकालना है, क्या करोगे, आर टी divided by r0 is equal to e raised to minus kt, and this is again the equation of first order reaction in terms of e exponent, correct, in terms of e exponent, बस तो इतना तो सिंपल है, ये एक इक्वेशन थोड़ा सा ज्यादा है, करेक्ट। चलिए अब अपन चलते हैं थर्ड एरिया पे, कौन सा एरिया है, हाँ, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के का एरिया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ कंपलसरी आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, एल एन, ये इंपॉर्टेंट है, एल एन आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो, आई नो योर टॉलरेंस लिमिट, आप चिंता मत करो, बस ये लास्ट क्वेश्चन और बस छोटे से 2 पोर्शन बाकी है तो धनाधन खत्म हो जाएगा, है ना। नाउ एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 log x, चलिए तो इसको 2.303 log में कन्वर्ट करते हैं, तो log आर टी इज इक्वल टू माइनस के पी, ये तो वही का वही रहेगा, 2.303 log आर जीरो। अभी एक काम कर लो भाई, 2.303 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो log RT is equal to minus k divided by 2.303 into t plus
log r0। तो ये हो गया अपना काम, है ना। अभी इसमें से k को बाहर निकालना है, बस ये छोटा सा काम करना है। लेकिन ये काम को करने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, क्योंकि एग्जांपल में हम रेट कांस्टेंट के लिए इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। तो माइनस के को इस तरफ ले आओ, तो भाई ये बन जाएगा प्लस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग आर जीरो। अब देखो, और ये आर टी उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, लॉग आर टी। यस, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, अभी अभी अपन ने ऊपर भी बात की थी, एल एन और लॉग्स दोनों के जो रूल्स है वो तो सेम है ना। तो ये हो जाएगा आर जीरो अपॉन आर टी, एंड लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो लॉग एक्स अपॉन वाई उस हिसाब से। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे के को अकेला कर देते हैं, क्योंकि उसको तो हीरो बनाना है, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ पे आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय p। चलिए, तो ये बन गया, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन फॉर इवन एग्जांपल्स एंड एमसीक्यू आल्सो। रेट कांस्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सा आएगा, ये 3 आएगा। 3 आएगा ना, जरा लेट मी चेक। नहीं 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 सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 4 आएगा। ओके, so this is the equation of rate constant for first order reaction. Now let's move towards the next screen। और इस k को थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं अभी अपन, k को थोड़ा सा घुमाना फिराना और कुछ नहीं। देखो, अगर मैं ये लिखूं उसी इक्वेशन को कि log r0 अपॉन rt इज इक्वल टू, वही इक्वेशन मैं फिर से लिख रहा हूँ, kt डिवाइडेड बाय 2.303। एक बात बताओ कि क्या मैं इसको, इस kt को अगर थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ऐसे बाहर लिखता हूँ, अब आपको ये इक्वेशन ऐसा लग रहा है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बोलोगे सी कहाँ है, नहीं है तो उसको निकाल दो। उसका मतलब उसका वैल्यू कितना है, जीरो है। अगर वैल्यू जीरो है तो मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास ऑन होगा, हाँ यस, जीरो से पास ऑन होगा। करेक्ट, मतलब जहां पे दो एक्सिस मिलती है इनिशियल पॉइंट वहां से पास होगा। अब एक और बात, y एक्स पे क्या लोगे, x एक्स पे क्या लोगे। आप बोलोगे कि ये तो ज्यादा हो गया ग्राफ, हाँ भाई, इसमें एक आध ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से थोड़ा सा ज्यादा है। बताओ अभी, चलो y एक्स पे क्या लोगे, x एक्स पे क्या ले रहे हो। भाई अपन y एक्स पे लेंगे log r0 अपॉन rt। करेक्ट, और x एक्स पे क्या ले रहे हो आप, t ले रहे हो। करेक्ट, हाँ, अभी ये ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, बहुत सीधा सा हिसाब है, ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा क्योंकि स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है और जीरो में से पास ऑन होगा ही होगा। स्लोप का वैल्यू क्या, अरे ये क्या हो गया, ओके फाइन, स्लोप का वैल्यू बोलो अभी क्या लिखूं मैं। ऐसा हो रहा है, समटाइम्स इट गॉट्स एरर इन माय वन नोट। हाँ ओके, अब सही है। चलो, तो अभी इस स्लोप का वैल्यू, तो स्लोप इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2.303। और आपको बोला है कि भाई k का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, स्लोप इंटू 2.303, बस हो गया ये काम खत्म। और यहाँ रेट कांस्टेंट खत्म हो गया, लास्ट एंड द फाइनल फोल्डर ऑफ दिस आंसर, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे इससे पहले तो ये आ गया, एक सेकेंड, ये अपने को खाली पेज चाहिए। फाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ना 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 ना, हाफ लाइफ पीरियड, लास्ट वाला जो है उसको हरियाली में करते हैं, हरे हरे रंग में करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। एक बात बताओ, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन, इक्वेशन अलग से 2 मार्कर में भी आता है, तो अपने को पूरे फोल्डर ऐसे ही माइंड में रेडी करना है। 2 मार्कर में आए तो भी टुकड़े करके लिख सकते हो, 4 मार्कर में आए तो भी पूरा लिखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट, चलो, हाफ लाइफ पीरियड, पहले डेफिनेशन लिख दिया, क्या है डेफिनेशन, अभी अभी अपन ने बात किया था, the time required to make the initial concentration half is known as half life period। तो हाफ लाइफ पीरियड t1 half is equal to इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा टुकड़ा, इट्स 1 half r0। के वाला इक्वेशन को यहाँ फिर से उठा के ले आते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाय t log r0 अपॉन rt। लेकिन भाई rt तो क्या है, r0 डिवाइडेड बाय 2 है, क्यों, क्योंकि ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा होने तक का टाइम है। और यहाँ t जगह क्या लिखोगे, t1 हाफ, तो t1 हाफ को सब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो 2.303 डिवाइडेड बाय k log log r0 अपॉन r0, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये log 2 हो गया। देखो अब ऐसा है कि आप बोलोगे log 2 देखे नहीं, उसको याद रखना ही पड़ेगा, 2.303 into log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 divided by k। Yes, come on, and this is the final equation, t1 half is equal to 0.693 by k।
एक बात बताओ, इससे पता क्या चला? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड्स ऑन हाफ लाइफ पीरियड. Half life period depends on initial concentration of reactant. This is the case of zero order reaction. But for first order reaction, half life period completely independent of initial concentration. But the common thing in both of the reaction, both reactions, zero order and first order, they are inversely proportional to rate constant of reaction, and that is about the final point, final question of the today's session. करेक्ट. तो यहाँ से हम सेशन कंप्लीट करते हैं. एंड आशा है आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा बड़ा बनाया होगा. तो आप भी थोड़ा सा मेरे को बड़ा बना दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा. ये जो मिशन है, दिस इज अ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल. आप लाइक नहीं करोगे, आई डोंट माइंड. आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसमें आपका लॉस है. क्यों? अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा. लेकिन शेयर जरूर करना, शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस, है ना? ओके, सो मस्त रहो, व्यस्त रहो, जबरदस्त रहो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.